هم ينشرون۔ کیا انہوں نے زمین میں کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کافروں سے کہ کیا کافروں نے زمین کے جواہر اور معدنیات جیسے سونے چاندی اور پتھر وغیرہ سے فرمایا کہ کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ جس کو معبود بنایا گیا ہے تو کیا یہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں؟ ایسا نہیں۔ تو فرمایا اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو خود بے جان ہو وہ کسی کو جان دے سکے۔ تو فرمایا اے کافروں، ان چیزوں کو معبود ٹھہرانا اور انہیں الہ قرار دینا، فرمایا یہ کتنا کھلا باطل ہے۔ معبود تو وہی ہے کہ جو ہر شے پر قادر ہو، جو زندگی موت دینے نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں۔ تو فرمایا اسے معبود بنانے کو تمہاری کون سی عقل اسے جائز قرار دے سکتی ہے؟ آگے ارشاد فرمایا ایک زبردست دلیل دی گئی، فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو فرمایا ضرور آسمان اور زمین تباہ ہو جاتے۔ تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللہ پاک ہے کہ جو عرش کا مالک ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کے واحد اور معبود ہونے کی ایک قطعی دلیل بیان کی گئی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آسمانوں یا زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو فرمایا سارے دنیا کا پورے جہان کا نظام درم برم ہو جاتا، کیونکہ اگر خدا سے وہ خدا مراد لیے جائیں، علماء فرماتے ہیں کہ جن کی خدائی کا بت پرست اعتقاد یعنی یقین رکھتے ہیں، تو فرمایا عالم کے فساد کا لازم ہونا ظاہر ہے، کیونکہ بت پرستوں کے خدا جو ہیں وہ جمادات ہیں، وہ پتھر کے ہیں اور وہ عالم کا نظام چلانے پر اصلاً قدرت ہی نہیں رکھتے۔ تو جب قدرت ہی کچھ نہیں تو وہ کائنات کو کیسے چلاتے؟ نمبر 1 اور نمبر 2 فرمایا کہ اگر خدا سے مطلقاً وہ سارے خدا مراد ہوں جنہیں کوئی بھی مانتا ہو، جیسے کوئی ستاروں کو مانتا ہے، کوئی کسی کو، تو فرمایا کوئی سا بھی، فرمایا کہ اگر خدا سے مطلقاً وہ سارے خدا مراد ہوں کہ جنہیں کوئی بھی مانتا ہے، تو فرمایا تو بھی جہان کی تباہی یقینی ہے۔ اب اس کا جواب علماء نے دیا، فرمایا کہ اگر 2 خدا فرض کر لی جائیں جیسے اللہ نے فرمایا، تو فرمایا وہ 2 حالتوں سے خالی نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 کہ 2 خدا ہوں تو وہ دونوں کسی شے پر متفق ہوں، پہلی بات۔ اگر 2 خدا ہوں تو وہ کسی شے پر مختلف، یعنی کوئی سی بھی شے ہو تو ان پر دونوں کا ارادہ مختلف ہوگا، یہ 2 باتیں۔ اب فرمایا کہ اگر 2 خدا ہوں اور وہ ایک ہی چیز پر متفق ہو جائیں تو فرمایا اس سے لازم آئے گا کہ ایک چیز دونوں کی قدرت میں ہو، یعنی 2 خدا ہوں دونوں کی قدرت میں ہو اور دونوں کی قدرت سے ایک ہی چیز واقع ہو، تو فرمایا یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے۔ اب دوسری دلیل دی، فرمایا کہ اگر مختلف ہوئے تو ایک چیز کے بارے میں، یعنی 2 خدا ہوئے، اب دونوں کے ارادے مختلف ہیں، تو فرمایا کہ اب اس میں بھی 2 صورتیں بنیں گی، یعنی 2 خدا ہیں اور دونوں کے ارادے مختلف ہیں تو 2 صورتیں بنیں گی۔ نمبر 1 فرمایا کہ دونوں کے ارادے ایک ساتھ واقع ہوں، یعنی ایک ہی وقت میں وہ ایک خدا چاہے کہ وہ چیز موجود ہو اور ایک خدا چاہے کہ وہ چیز نہ ہو، تو یہ بھی ناممکن ہے۔ نمبر 2 کہ دونوں کے ارادے واقع نہ ہو، یعنی اس صورت میں وہ چیز نہ موجود ہوگی نہ معدوم، ایک کا ارادہ واقع ہو دوسرے کا واقع نہ ہو، تو جتنی بھی صورتیں لگا لی جائیں تو فرمایا یہ تمام کی تمام محال ہیں، یعنی ناممکن ہے۔ کہ چونکہ پھر کیا بات سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ جس کی بات پوری نہ ہو، یعنی 2 خدا ہو اور ان میں سے ایک کی بھی بات پوری نہ ہو، تو فرمایا وہ خدا نہیں ہو سکتا، حالانکہ جو صورت بھی فرض کی گئی وہ خدا
होने की सूरत में फ़र्ज़ की गई है, तो इससे ये साबित हुआ कि बाहरी सूरत एक से ज़्यादा खुदा मानने की सूरत में कायनात का निज़ाम जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। और याद रखिए कि अल्लाह की वहदानियत पर ये कुरान की सबसे ज़्यादा मजबूत दलील है। और इसे बयान करने के लिए उलमा ने जो इल्म कलाम के माहिर हैं, क्योंकि हम तो ये किताब अब हम तो मुख्तसर तफसीर सुन रहे हैं, वरना जो उलमा पढ़ाते हैं इल्म कलाम पूरा एक मौजू है। तो इल्म कलाम पर इस आयत के ज़िमन में कि एक खुदा से ज़्यादा खुदा हो सकते नहीं हो सकते, इतनी ज़ख़ीम किताबें लिखी गई और इतने दलाइल उलमा ने दी हैं। अगर किसी को शौक़ हो तो उलमा से पूछे और उन किताबों को पढ़े। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात इख्तिताम कर दी, फरमाया अर्श का जो मालिक है अल्लाह अपने बारे में लोगों की बनाई हुई तमाम बातों से पाक है, और क्योंकि जो उसकी शान के लायक नहीं, लिहाजा न उसकी कोई औलाद है और न कोई उसका शरीक है। आगे इरशाद फरमाया ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून, अल्लाह से उसके काम के मुताल्लिक सवाल नहीं किया जाता, जो वो करता है और लोगों से सवाल किया जाएगा। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत और शान ये है कि अल्लाह जो काम करता है उसके बारे में कोई अल्लाह से पूछ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो हकीकी मालिक है। वो जो चाहे करे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे ज़िल्लत से हमकिनार कर दे, जिसे चाहे सआदत दे, जिसे चाहे बदबख्त कर दे, वो सब का हाकिम है। कोई उसका हाकिम नहीं कि कोई उससे पूछ सके। लेकिन यहाँ पूछने में उलमा ने फरमाया सरजनिश और हिसाब का पूछना है, कि यानी मखलूक में से किसी की जुर्रत नहीं कि वो रब ताला से ये पूछ सके कि तूने इस पर इताब क्यों किया, यानी इताब की पूछ गछ करे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान ये है कि वो सबसे पूछ गछ करेगा और वो पूछेगा इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, फिर एक सवाल आता है कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह की बारगाह में सवाल करते हैं। जैसे कि हम कुरान हकीम का मुताला करते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को ज़िंदा कैसे करेगा ये सवाल किया, ये अल्लाह ताला से। तो ये जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सवाल करना था। अब यहाँ पर है ना कि कोई उससे उसके काम के मुतालिक सवाल नहीं कर सकता। तो यहाँ जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, तो याद रखिए कि आपने इत्मीनान क़ल्ब के लिए, और ये अल्लाह के महबूब हैं और ये पूछ सकते हैं। और इसी तरह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो रही थी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया था कि मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ, फ़रिश्तों से कहा था। तो फ़रिश्तों ने उस वक्त उस पैदाइश की वजह और हिकमत पूछी थी कि मालिक तू किसको बनाना चाहता है, तो वो पूरा पहले बारे में हम समाअत कर चुके हैं। तो याद रखिए कि ये जो सवाल करना मनकूल है या फ़रिश्तों का रब ताला से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की हिकमत पूछी थी, तो ये पूछना नहीं बल्कि ये इत्मीनान क़ल्ब के लिए था और इसकी इजाज़त अल्लाह वालों को होती है। लेकिन याद रखिएगा बाज़ एतराज़ात जो होते हैं वो बदतरीन एतराज़ात होते हैं और उसकी किसी को इजाज़त नहीं कि कोई अल्लाह के किसी फ़ैल पर एतराज़ कर सके। जैसे शैतान ने किया था सबसे पहले एतराज़ अल्लाह पर कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई मखलूक थी, तो उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर शैतान ने एतराज़ किया था। तो उसकी तमाम तर इबादत और रियाज़ात और जितना उसका मकाम और मर्तबा फ़रिश्तों के दरमियान था, जब उसने अल्लाह की बारगाह में एतराज़ किया कि तूने मुझे आग से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया, और अल्लाह पर एतराज़ उसने किया था, तो उसे अल्लाह ने उसके न मकाम को देखा, न मर्तबे को देखा, न उसकी इबादत को, न रियाज़ात को, उसे मरदूद करके अपनी बारगाह से निकाल दिया। तो यहाँ से उलमा ने एक बात बताई कि अल्लाह की पैदा हुई किसी भी मखलूक में कभी एतराज़ नहीं करना चाहिए। यानी ये अल्लाह ने क्यों बनाया, ये अल्लाह पर एतराज़ करने वालों के लिए जवाब है। तो जो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक पर एतराज़ करेगा तो उसका अंजाम जैसे शैतान का हुआ तो ऐसा इसका भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि इससे उलमा ने एक और बात भी लिखी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी
एतराज़ करना, क्योंकि ये बहुत बदतरीन एतराज़ है कि क्योंकि हुजूर जो है वो अपनी ख्वाहिश से कोई बात नहीं कहते, न करते हैं कि हुजूर के अफ़आल में, हुजूर की सीरत में अगर कोई ऐसी बात मिले तो कभी भी एतराज़ हुजूर की ज़ात पर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर जो हुजूर पर भी एतराज़ करेगा गोया कि वो अल्लाह पर एतराज़ करेगा, और जो अल्लाह पर एतराज़ करेगा उसके मुकद्दर में हलाकत व बर्बादी है। और इसी तरह उलमा और औलिया पर भी एतराज़ात नहीं करने चाहिए, लेकिन इसका अंजाम भी उलमा ने लिखा कि वो हर खैर व भलाई से महरूम हो जाता है। तो याद रखिएगा कि ऐसे लोगों का दुनिया में भी बुरा अंजाम है, और आखिरत में उलमा ने ये लिखा कि जिन लोगों ने अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, अम्बिया पर, औलिया पर, उलमा पर एतराज़ किया, ऐसे लोगों के अंजाम के लिए आखिरत में इनकी सज़ा ये होगी कि ना अल्लाह उनसे कलाम फरमाएगा, ना उनकी तरफ रहमत की नज़र करेगा, और ऐसे लोगों के लिए जहन्नम का दर्दनाक अज़ाब होगा। और इस आयत में ये भी फरमाया कि लोगों से सवाल किया जाएगा, कि लोगों से क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि तुमने ये काम क्यों किया, क्योंकि सब अल्लाह के बंदे और उसकी मिल्कियत में हैं। तो इसलिए इस आयत से ये पैगाम मिला कि अल्लाह के सारे बंदों के लिए अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी लाजिम है। और ये भी अल्लाह की वहदानियत की एक दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में भी उन काफिरों को समझाया कि जब सब अल्लाह की मिल्कियत में है तो उनमें से कोई खुदा कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई एक ही चीज़ मालिक भी हो, ममलूक भी हो, ये दोनों चीज़ें मुहाल हैं, ये नामुमकिन है कि एक ही वक्त में कोई मालिक भी हो और ममलूक हो, ये हो नहीं सकता। आगे इरशाद फरमाया अमित्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा कुल हातु बुरहानकुम हाज़ा ज़िक्रु मन मइया व ज़िक्रु मन क़बली बल अक्सरुहुम ला यअलमूनल हक़्क़ फ़हुम मुअरिदून। क्या उन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना रखे हैं? तुम फरमाओ तुम अपनी दलील लाओ। ये कुरान मेरे साथ वालों का जिक्र है और मुझसे पहलों का तज़किरा है, बल्कि उनके अक्सर लोग हक़ को नहीं जानते तो वो मुँह फेरे हुए हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों को डांटते हुए इस्तिफ़हाम यानी सवालिया अंदाज में उनसे फरमाया कि क्या उन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना रखे हैं। यानी ए महबूब, आप इन मुशरिकीन से फरमा दें कि तुम अपने इस बातिल दावे पर दलील लेकर आओ और हुज्जत कायम करो कि तुम जिनको खुदा कहते हो, और वो हुज्जत अकली हो नकली हो, तुम कोई सी भी दलील लेकर आओ। फरमाया न तुम अकली दलील ला सकते हो और न तुम नकली दलील, यानी नकली और अकली से यानी अकल भी जिसकी गवाही दे, और नकल से मुराद ये है कि तमाम पुरानी आसमानी जो गुज़श्ता आसमानी किताबें हैं, तौरात, इंजील वगैरह, उनमें से बताओ। तो फरमाया कि हर एक किताब में गुज़श्ता ज़मानों में जो नबियों पर नाजिल हुई उन सब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिर्क को बातिल करार दिया, और उन तमाम किताबों में अल्लाह की तौहीद का बयान है और इसमें उसका रद्द किया गया। और इसी आयत में ये फरमाया कि ये कुरान मेरे साथ वालों का जिक्र है। तो इससे मुराद ये है कि साथ वालों से हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि साथ वालों से ज़िक्र से मुराद कुरान करीम है और पहलों के ज़िक्र से मुराद तौरात और इंजील है। तो माना ये हो कि तुम कुरान, तौरात, इंजील और तमाम आसमानी किताबों की तरफ रुजू करो। क्या तुम इन तमाम किताबों में ये बात पाते हो कि अल्लाह ने कोई औलाद इख्तियार की या उसके साथ कोई और माबूद है? लेकिन आखिर में जवाब दिया कि उनमें से अक्सर लोग हक़ को नहीं जानते। कुफ़ार के अवाम का हाल ये है कि वो हक़ को नहीं जानते और वो बेशऊरी और जहालत की वजह से हक़ से मुँह में मोड़े हुए हैं, और इस बात पर गौर व फिक्र नहीं करते कि तौहीद पर ईमान लाना कितना ज़रूरी है। फरमाया जबकि उनके उलमा जो हैं वो जानबूझकर इनाद की वजह से वो हक़ के मुनकिर हैं। तो इससे उलमा कहते हैं कि इस आयत में हमारे लिए पैगाम ये है कि हक़ के बारे में मालूमात ना होना और हक़ और बातिल में तमीज़ न करना, हक़ से मुँह मोड़ने का जो बहुत बड़ा सबब जो है, और ये फसाद की सबसे बड़ी जड़ है। और क्योंकि इन्हीं चीज़ों का ये नतीजा है कि फरमाया कि कई लोग कुफ्र और शिर्क जैसे अजीम फसाद में मुब्तला हैं, और बाज़ अफराद जो हैं वो मुनाफिकत के बदतरीन वो मर्ज़ का शिकार हैं। जैसे कि बाज़ मुसलमान जो हैं वो रियाकारी, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी और दुनिया की मोहब्बत में ये गिरफ़्तार हैं। और बाज़ पढ़े लिखे ऐसे लोग भी हैं कि ये जाहिल हज़रात
کہ اپنا مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسلام کے احکام اور اس کی حکمتوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے کبھی وہ پرنٹ میڈیا پر، کبھی وہ الیکٹرانک میڈیا پر آ کر، اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر وہ اسلامی جتنے احکام ہیں اور اسلامی اقدار جو ہیں ان پر اعتراضات کرتے ہیں اور انہیں انسانیت کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس میں یہی بات سکھائی گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق کا علم اور حق اور باطل میں تمیز کرنے اور حق کو اختیار کرنے اور باطل سے منہ پھیر لینے کی ہر وقت اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ تاکہ ہمیں اللہ رب العالمین ہمیشہ حق کا علم عطا فرمائے اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی صحیح سوچ اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ رہنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، رب کریم ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ رب کریم نماز عشاء ادا کرنا، قرآن پاک کا درس سننا اور درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے رہنے اور اس کے سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ قرآن حکیم کے نور سے ہماری زندگیوں کو منور فرما دے۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اخلاص کی دولت عطا کر دے، یقین کی دولت عطا کر دے۔ مولائی کریم ہمیں سچی نیتیں عطا فرما، ہماری نیتوں کو خالص کر دے۔ ریاکاری، منافقت، غرور و تکبر ہم سے دور فرما دے۔ یا رب العالمین آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں رب کریم سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔